Hi guys, welcome to this particular session. The agenda for this particular session would be to solve a few questions based on monopolistic competition and based on monopoly. So this is the reference for this is going to be chapter number 11 from your AMG book, which uh, is the part of your curriculum for semester 4 intermediate microeconomics. So let's try to solve a few problems and let's get a good understanding of the concepts. All right. So let's start. So basically, this is the first question, and somebody said they had a doubt in part number B. So we'll just focus on part number B because part number A is a little simpler, so you can try to attempt it on your own. So let me first explain the question now, and then let's see how to proceed with it. So what is the question saying? The question is saying you have the situation of price discrimination with different demands. So price discrimination with different demands. So you have to consider a monopolist who is selling to two markets. There's a monopolist who's selling to two markets. Her market ka, every market faces a different demand function, which the monopolist can observe, and the monopolist can charge different prices in different markets. Thus, this monopolist is practicing third degree price discrimination. तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि इफ यू हैव टू मार्केट्स एंड हर मार्केट की डिमांड अपनी अपनी तरीके की होगी, सो जो भी उसकी डिमांड है, जो भी डिमांड फंक्शन है, उसके बेसिस पे आप अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकते हो. इफ यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी देन वी कॉल इट द सिचुएशन ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सो बेसिकली ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास हो रहा है, एंड फॉर सिंप्लिसिटी वी आर अज्यूमिंग दैट द मार्जिनल कॉस्ट is C in both the markets. So marginal cost of production for this particular monopolist is the same in the two markets. But ये जो दो मार्केट हैं इसमें आप अलग अलग तरीके से प्राइसिंग कर सकते हो if it is more profitable for you. This is the third degree price discrimination situation. So अब हम लोग इसमें जो है आगे बढ़ेंगे. फाइन, चलो तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है. So we will just focus on part number B now. So part number B is saying you have constant elasticity of substitution demand. So जो दो markets हैं उनकी जो demand है, that is constant elasticity of substitution demand. So consider now that the direct demand in each market I is given by this. So जो demand है, so basically मेरे पास दो markets हैं, market 1 and market 2. This is market 1, this is market 2. ये दो markets हैं मेरे पास. एंड हर मार्केट में जो डिमांड है वो क्या दी हुई है. सो एवरीथिंग इज रिटन इन टर्म्स ऑफ आई. सो देन यू कैन सिंपली put the value of I is equals to 1 for the first market and I is equals to 2 for the second market. So what is going to be the demand for the first market? First market के लिए हमारी डिमांड क्या होने वाली है? That will be Q1 and the price that you will keep, which is A1 P1 minus B1. This is the demand in the first market. And in the second market, the demand is going to be this. A2 P2 minus B2. This is going to be my demand. Okay. Achha. And then they are just saying, recall that this exponent minus BI indicates the elasticity of substitution, which is just a number and thus is constant in QI. So basically ये जो दो numbers हैं ये constant है because this is constant elasticity of substitution demand. So ये दोनों numbers constant हैं, ठीक है. So now what is being asked from you is find the profit maximizing price and quantities in each market. अब हर एक market में profit maximizing quantity and price आपको बताना है. And then the question in the next part is asking under what conditions on the parameter A, I, B, I and C does the monopolist charge the same price in both the markets. तो वो कौन सी conditions होंगी in all these parameters A, I, B, I and C कि monopolist दोनों markets में same pricing charge कर रहा होगा.
ठीक है, दिस इज द सिचुएशन दैट वी हैव। ओके, सो इसमें आपको वैसे देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारा सिंपल सा लॉजिक क्या रहेगा कि मोनोपोलिस्ट क्या है, मोनोपोलिस्ट का ऑब्जेक्टिव है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। अगर उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकते हो, तो वो इस मार्केट को एक मोनोपोली की तरह ट्रीट करेगा। एक मिनी मोनोपोली हो गई है, ये दूसरी मार्केट को भी वो ये मोनोपोली के तरीके से ट्रीटमेंट देगा। तो ये एक मोनोपोली हो गई है, दूसरी दूसरी मोनोपोली हो गई है, राइट। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे मोनोपोलिस्ट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा होगा, और यहाँ पे भी मोनोपोलिस्ट वो प्राइस चार्ज करेगा जिससे उसका इस मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, एंड देन दैट इज ऑल बेसिकली। तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में लॉजिक यही रहता है, जितने मार्केट्स हैं उसमें इंडिविजुअली आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो और उसके बेसिस पे प्राइस और क्वांटिटी पुट कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट मार्केट का एक बार ही निकाल लेते हैं। सेकंड मार्केट वाला एग्जैक्टली सेम होएगा, जस्ट नंबर्स बदल जाएंगे, 1 की जगह 2 आ जाएगा। दैट इज ऑल। सो मोनोपोलिस्ट इन द फर्स्ट मार्केट, व्हाट इज दिस पर्सन गोइंग टू डू? वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा। तो उसका प्रॉफिट होगा क्या? प्रॉफिट होगा इस मार्केट में जो रेवेन्यू है, मतलब इस मार्केट में जो भी वो प्राइस रख रहा है P1, जो भी वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, माइनस कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है C, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो C है, एंड दैट इज सेम अक्रॉस द मार्केट्स। एंड जितनी भी वो क्वांटिटी बनाएगा उसके बेसिस पे ये कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली माय प्रॉफिट इन द फर्स्ट मार्केट। तो अब इसको ये क्वांटिटी चूज करनी है जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, या फिर अगर आप उसको उस तरीके से बोलना चाहो कि वो प्राइस चार्ज करने की कोशिश करेगा जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। दैट्स द सिंपल लॉजिक। तो आप आराम से अपना क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो P1 है उसको Q के टर्म्स में लिख सकते हो, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो कि ये जो Q1 है ये P के टर्म्स में है, और फिर यहाँ पे भी ये जो Q1 है ये P के टर्म्स में आ जाएगा। तो उसमें से अब आप क्या कर सकते हो कि वो वैल्यू ऑफ प्राइस चूज कर सकते हो जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। सो इट्स द सेम प्रॉब्लम, either you convert your profit in terms of quantity and then maximize with respect to quantity, or you convert this entire problem in terms of prices and then maximize with respect to price. Both are going to give you the same answer. तो जो भी आपको convenient लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप प्राइस को रिप्लेस करो, सिर्फ प्राइस को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो आपको फिर ये पूरा फंक्शन किसके टर्म्स में रखना पड़ेगा? प्राइस के टर्म्स में। ठीक है, क्योंकि अभी ये क्वांटिटी के टर्म्स में। तो अगर आप वैसा करना चाहते हो, विच इज यूजुअली व्हाट वी डू, देन यू कैन डू दिस। सो दिस इज Q1 is equals to A1 P1 raised to the power minus B1. Sorry, yeah, minus B1. This is the demand, right? तो आप क्या कर सकते हो, Q1 divided by A1 is equals to 1 by P1 B1. ये हो गया, right? तो P1 raised to the power B1 is equals to A1 Q1 minus 1. ये हो गया, right? आपने इसको इस तरफ भेजा, इसको इस तरफ भेजा, ये नीचे आया और उसकी पावर -1 हो गई। और आप हर तरफ पावर 1 बाय B1 से अगर डिवाइड करोगे, सो यहाँ पे B1 है और हर तरफ आप ये अगर पावर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, A1 Q1 minus 1 raised to the power 1 by B1. ठीक है, and then this particular expression, this will become P1. ये आपका P1 हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो, A1 raised to the power 1 by B1 and Q1 raised to the power minus 1 by B1। तो ये कन्वर्जन हमने किया बिकॉज हमें प्राइस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी चाहिए थी। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं करना है, अगर आपको दूसरे तरीके से चीजें करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी की जगह डायरेक्टली जो है, यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे भी क्वांटिटी, आप डायरेक्टली ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हो, एंड देन एवरीथिंग विल बी so the profit, maximized profit will be coming out in terms of
आपका पूरा एक्सप्रेशन सिर्फ प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन यू विल बी डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू P1. दैट्स द ओनली डिफरेंस, दैट्स इट. सो यू कैन डू दिस ऑल्सो, और इफ यू वांट यू कैन डू दैट आल्सो, द वन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड. ठीक है, तो अभी इस चीज में अगर हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा. तो ये आपने इनका प्रॉफिट निकाल लिया. सो नाउ दैट यू हैव डन दैट, सो नाउ अब आप क्या करोगे. अब अपना जो प्रॉफिट है वो क्या करोगे, P1 की जगह क्या लिखोगे. A1 1 by B1, Q1 minus 1 by B1, and then there is a Q1 which is multiplied, and then there is C, and then there is Q1, right? This is your profit. ठीक है. A1 1 by B1, and then this is Q1 1 minus 1 by B1 minus C Q1. ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है. इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करोगे. विल डू दिस, राइट. सो व्हाट डू यू गेट. ये A1 1 by B1 तो एज इट इज रहेगा. ठीक है, ये जो भी एक्सप्रेशन है इसमें ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, 1 minus 1 upon this, एंड देन Q1 रेज टू द पावर वट एवर दिस इज, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा Q1 minus 1 by B1. This is what I will be left with. And then यहाँ पे ये जो CQ1 है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा C. And this entire thing is to be equated to 0. ठीक है, ये होने वाला है. तो अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं. Okay, so why did I do that? Yeah, this is what. Yeah, this entire thing will come in front, and then this is what we have, right? Yeah, this is exactly what we wanted. So what happens here now? This is A1, 1 by B1, 1 minus 1 by B1, and then this Q1 raised to the power minus 1 by B1 is equals to C. ठीक है, और मुझे क्या निकालना है कि मेरी क्वांटिटी क्या होगी, मेरी क्वांटिटी क्या होने वाली है. So I will just do little manipulation. थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे. इधर हो जाएगा A1 1 by B1, राइट. एंड देन दिस इज B1 minus 1 divided by B1, एंड देन क्वांटिटी जो है इसकी पावर अगर नीचे लेके आओगे तो दिस इज Q1 1 by B1, एंड देन दिस इज इक्वल्स टू C, राइट. आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ Q, आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, राइट. तो मैं इस हर जगह पे पावर, इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर अगर B कर दूं दोनों तरफ तो क्या होगा. A1 1 by B1, Q1 1 by B1, B1 minus 1 divided by B1 raised to the power, इस पूरे चीज की पावर आपको क्या करनी है B1, एंड दैट विल बिकम C B1, राइट. ठीक है, अब ये पावर अलग अलग से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, राइट. तो ये अगर इधर आती है तो ये A1 हो जाएगा, नीचे Q1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा B1 minus 1 divided by B1 raised to the power B1 is equals to C B1. और फिर मुझे जो क्वांटिटी Q1 की वैल्यू चाहिए थी वो क्या हो जाएगी, that will be A divided by C B1, and then B1 minus 1 divided by B1 raised to the power B1, right. This is what you get. और इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करने की इच्छा है आपकी तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे भी पावर B1 है, यहाँ पे भी B1 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 by C and then 1 minus 1 by B1, और इस पूरे की पावर B1. This is what you can write it like. This becomes your Q1 value. ये हमारी क्वांटिटी की वैल्यू हो गई. ठीक है, एंड सो यहाँ से ये क्वांटिटी की वैल्यू हो गई, और प्राइसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर. सो दिस इज माय प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी. ठीक है, और मेरे प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, Q1 I have calculated, right. So my task now is to find P1. So Q1 is equals to, yeah, Q1 is equals to A1 P1 minus B1. This is the relationship, right. तो अब आप यहाँ पे ये Q वैल्यू इधर रख दो. Okay, and this is A1.
right? So if you put this value here, what do you get? A1, 1 minus C, 1 minus 1 by B1 raised to the power B1 is equals to A1, B1 minus B1 minus B1. This is the power, right? So these two things will get cancelled and I am just left with this, which is 1 by C and 1 minus 1 upon B1. This entire thing raised to the power B1 is equals to P1 raised to the power minus B1, right? If you, both sides, if you just do power 1 by B1, what do you get? ये वाली power cancel हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और इधर power हो जाएगी -1, right? So what am I left with? 1 by C, 1 minus 1 by B1 is equals to P1 raised to the power -1, right? P1 raised to the power -1 is nothing but 1 by P1. And so P1 value becomes what? C goes in top and then basically this entire thing 1 minus 1 by B1. So ये जो price है ये क्या हो जाएगा? C and then this is B1 minus 1 and ऊपर B1. ठीक है? So this is basically the price. So price, profit maximizing price is nothing but this. This is your profit maximizing price. ठीक है? अब ये जो प्राइस है ये सिर्फ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? B1 पे, ठीक है ना? So this is my profit maximizing price and I calculated the profit maximizing quantity here, ठीक है? अब बिकॉज ये देखो इस प्रॉब्लम में और ये जो सेकंड मार्केट है उसमें डिफरेंस कोई नहीं है एक्सेप्ट जहां जहां 1 है वहां 2 होगा। तो अगर आप सेम लॉजिक से चीजें देखोगे तो Q2 स्टार एंड Q2 स्टार की एक्चुअली वैल्यू क्या हो जाएगी? A2 1 by C 1 minus 1 upon B2 and then this entire thing to the power B2. This is your Q2 star and your P2 star is going to be nothing but B2 C divided by B2 minus 1. This is your profit maximizing price in the second market. So first market, second, बिल्कुल एकदम symmetry है. The only difference is instead of 1 you have 2. So बस numbers ही तो change हो गए ना. पूरा process अगर आप करके देखना चाहो तो कर लो. You are going to get the same result. ठीक है? तो अब इन्होंने क्या बोला है कि अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन दी पैरामीटर्स, ये A1 B1 C, इन पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लोग सेम प्राइस रखें। सो प्राइसिंग जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? वो C पे डिपेंड कर रही है और वो B1 B2 इन पे डिपेंड कर रही है। तो अगर आप अपनी मार्जिनल कॉस्ट सेम रखो, सो एज लॉन्ग एज योर पावर्स B1 एंड B2 इफ दैट इज द सेम देन योर प्राइसेस विल बी सिमिलर, राइट? तो C तो सेम वैसे भी दिया हुआ ही है। B1 और B2 अगर सेम हुए तो इन दोनों मार्केट्स में सेम प्राइस रखा जाएगा। और B1 और B2 हमारे यहाँ पे क्या थे? दिस वाज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो व्हाट एसेंशियली आर वी ट्राइंग टू से कि अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम है तो उस मार्केट में अगर आपका डिमांड कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला सिचुएशन है और आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी सेम है, तो अगर आपकी इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन दोनों मार्केट्स में सेम है तो आपका प्राइस उन दोनों मार्केट्स में सेम रहेगा। ठीक है? This is what we are trying to say in this particular example. Okay. I hope this is clear and this makes sense. So this is how you will have to attempt this particular problem. Okay. I think it should be fine. And if there are any problems, let me know. Okay. I will see you in the next part. Okay. Thank you.